Hello, students. Hope all of you are doing very fine and all of you are keeping well. So, we are into the first chapter of class 12 relations and functions. Right, so we have almost done with the relations, and after relations, now we come to functions. This is the most important part of class 12 mathematics. Okay, now what is a function? Let me define it a very basic way related to our day everyday life. रिलेशन क्या कहते हैं हिंदी में? रिश्ता. अब ऐसा है, जब भी इंसान के कहीं रिश्ते बनते हैं या रिश्ते होते हैं तो सारे रिश्ते मेचोरिटी तक नहीं पहुंचते. कुछ रास्ते में ब्रेक हो जाते हैं, कुछ मंजिल तक पहुंच जाते हैं. जो रिश्ते स्पेसिफिक टाइप के, जो रिलेशंस एक मंजिल तक पहुंच जाते हैं, उनको जब हम सेलिब्रेट करते हैं तो उन रिश्तों को सेलिब्रेट करने के लिए हम फंक्शंस ऑर्गेनाइज करते हैं. सो डियर फ्रेंड्स, अ फंक्शन इज नथिंग बट इट इज अ स्पेशल रिलेशन. ठीक है, तुम आप ये मान के चलिए आप रिलेशनशिप पढ़ रहे हो. और क्या होता है रिलेशन? क्या था हमारे पास पहले? रिलेशन वॉज वॉट? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी था ना, ए क्रॉस बी का सबसेट. अब हमारे पास अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी is said to be a function if every element of set A. रिलेशन में तो चॉइस थी, चाहे सारे जुड़े चाहे थोड़े जुड़े, बट यहाँ पे एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू अ यूनिक, or you say is every element of set A is related to a unique element of B, or you write it to an element of B uniquely. And you know what is the meaning of unique? Is one and only one. Means अगर हमारे पास रिलेशन में पहले सेट का हर एक एलिमेंट अगले सेट में, पहले सेट को क्या कहते थे हम लोग? डोमेन. ठीक है, मतलब डोमेन ही कहते थे. इट वाज एक्चुअली द सुपर सेट ऑफ डोमेन. फर्स्ट एंट्रीज को डोमेन कहते थे, बट यहाँ पे जब ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट आ जाएगा तो पहला सेट क्या बन जाएगा बाय डिफॉल्ट? डोमेन. और ये क्या होता था? कोडोमेन. इफ एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन सेट is related to some element of codomain, and this relation is unique, right? So this is how do you denote this function and how you further redefine it. So it says a function f from a to b is actually a rule by which what you do is to each element of A, that is each x belonging to A, we assign, right, a unique y belonging to B, such that this is how this relation is denoted by, right? So every element of A is related to some element of B in a unique way, right? So I'll try to explain this definition with the help of an arrow diagram. For example, if I take a 1 2 3, I take a, let me say, x by z. 1 goes to y, 2 goes to x, 3 goes to z. What's happening here? Okay, now let me take another case. If I take here 1 2 3, again I take here 1 2 3, 1 goes to 1, 2 goes to 1, 3 goes to 1. If I take another case, I write it again 1 2 3. Here also I write 1 2 3, 1 goes to 1, 2 goes to 2. And let me take another case 1 2 3, again 1 2 3. Here 1 goes to, let me say, 3, 2 goes to 1, and 3 goes to 2. Right? Now which of the following four is an example of a function? All these four are relations, right? Now if you look at the first one, this is a function. What was the definition? Each element of first set
ठीक है बेटा, is related to some element of this, and this relation is unique, means it's uniquely related, it is related to one and only one element of B. ठीक है, if you look here, this one is related to what, 1, 2 is related to what, 1, 3 is related to what, 1. So again each element is related only to one element. ठीक है, if you talk about this, here this is related to 1, this is related to 1, but each वाले केस में 3 is free here, 3 is not related to any element of the codomain set. So what we say here is कि each element का concept fail हो गया, hence this is not a function, this is a function. And if you talk about this, again this is a function, each element is related and each element is related to some element of B in a unique way, right? मतलब एक एलिमेंट एक ही जगह पे जाना चाहिए. सम ऑफ यू माइट बी गेटिंग कंफ्यूज, यहाँ बहुत सारे एलिमेंट एक जगह पे जा रहे हैं. मैं वापस से रिपीट करूँगा, डेफिनेशन ये नहीं कहती कि कितने एलिमेंट इसके पास आ सकते हैं. डेफिनेशन ये कहती है कि यहाँ से जो एलिमेंट है वो सिर्फ एक ही जगह पर जाएगा. वन एलिमेंट विल गो टू ओनली वन प्लेस. जबकि रिलेशन में 1 1 पे भी जाता था, 1 2 पे भी जा सकता था, 1 3 पे भी जा सकता था. तो एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ रिलेशन जिसमें ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन, ठीक है, इज रिलेटेड टू सम एलिमेंट ऑफ कोडोमेन इन अ यूनिक वे और यूनिकली. सो एवरी एलिमेंट हैज गॉट अ यूनिक इमेज, राइट? सो हाउ डू यू राइट सिंबॉलिकली फंक्शन? If f is a function from a to b, then you write it f of x, you denote it by rather f of x is equal to y. f किस पर ऑपरेट हुआ? a पर. So this x comes from a and this y comes from b. इस x को जिस पर आपने फंक्शन लगाया, इसको हम कहते हैं इनपुट और इसको हम कहते हैं आउटपुट. इसका नाम डोमेन भी होता है और इसका नाम क्या हो जाता है? रेंज, जो उसके आंसर्स आते हैं. और इसको आप लोग एक और नाम दे सकते हो एक्स को, दैट इज एक्स इज इंडिपेंडेंट एंड वाई इज डिपेंडेंट. इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पे हमेशा ऐसा लिखा होता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. ठीक है सर. x is also known as pre-image and y is known as image. और y किसके बराबर था? f of x के. मतलब जब भी मैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखता हूँ तो ये जो पूरा f of x पूरा का पूरा कंप्लीट वैल्यू, दिस इज सेड टू बी इमेज. ठीक है. और ये किसके बराबर है? y के. तो ऐसा लिखते हैं वो, y is image of x, right? And this x is said to be pre-image of y. If I show it to you diagrammatically, it is something like this. This is set A, this is set B, there's a function f, this is x, and this is what happens here. f आया, इसको उठाया, यहाँ जाके क्या बन गया? f of x, और इसका क्या नाम होता है? y, right? तो x को कहते हैं प्री इमेज. किसकी प्री इमेज है ये? y की प्री इमेज. और y जो है इसको कहेंगे हम लोग इमेज. सो x इज प्री इमेज ऑफ y अंडर द फंक्शन f and y is the image of x under the function f. वैसे भी सिंपली चीज़ ये कहते हैं ना लोग कि इमेज एक ही होनी चाहिए. जो इंसान बार बार इमेजेस बदलता है, आप बता नहीं पाओगे वो क्या करेगा आगे, राइट? सो यही डेफिनेशन है फंक्शन की कि हर एक एलिमेंट जो है डोमेन सेट का, ठीक है, उसकी जो इमेज है वो यूनिक होगी. उसकी सिर्फ एक ही इमेज होगी, एक से ज़्यादा इमेजेस नहीं हो सकती, राइट सर? नाउ this, when you write f from a to b, this a is said to be the domain set, or simply you say domain, and this b is said to be codomain. ठीक है.
and your range is always the subset. Range is actually what? The collection of all the y's, all the values of y's that you get is a range, and range is always a subset of codomain. I think this is something we have already done in class 11 also, basic definition इसकी, ठीक है. So function is a rule from A to B in which to each element of set A you assign a unique element in B, right. मतलब ये है कि A में कोई भी फ्री नहीं रहेगा, B में फ्री रह सकता है, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है. अब फंक्शंस को चेक करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है ग्राफिकल मेथड. एरो डायग्राम हमने कर लिया, ठीक है. ग्राफिकल मेथड में कौन सा टेस्ट लगता है? यहाँ पे वर्टिकल लाइन टेस्ट. वर्टिकल आपने पहचान ही लिया होगा, समवेयर रिलेटेड टू ओनली व्हाट? वाई एक्सिस. अगर मैं थोड़े से क्वेश्चंस की एग्जांपल्स कंसिडर करूं आपके सामने, कुछ बेसिक, अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, सबसे पहला ग्राफ बनाते हैं हम लोग. चलो इकट्ठे बनाएंगे सारे, कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ कर लेता हूं मैं ऐसे, राइट. लेट मी टेक 3-4 केसेस. लेट मी ड्रॉ द फर्स्ट केस ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन. नाम सुना है ना सबने? आइडेंटिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स और यू राइट वाई इक्वल्स टू एक्स, ठीक है. सेकंड केस, लेट मी टेक f of x equal to x square. That is, this is I have taken y equals to x. Here I am taking y equals to x square. So y equal to x square is a parabola, है ना, upward parabola. And let me take another case, y equals to x cube. 3 basic functions ले लेते हैं, ठीक है. तो x cube का graph will be somewhere like this, so something like this, right जी. ये हमारे पास आ गए 3 बेसिक. एंड फोर्थ चॉइस, लेट मी टेक अनदर वन. लेट मी टेक अनदर पैराबोला, दैट इज x is equal to y square और you write y square equals to x. कहता है कब हमें पता चलेगा कि ये फंक्शन है? इफ यू ड्रॉ लाइन्स पैरेलल टू y axis and a line intersects with the graph only at one point. एक लाइन एक ग्राफ को एक ही जगह काटेगी, ठीक है ना. तो इसका मतलब वो वाला जो ग्राफ है, एक लाइन, हर एक लाइन एक ही जगह पे काटेगी. सॉरी, हर एक लाइन एक ही पॉइंट पर अगर उस ग्राफ के साथ इंटरसेक्ट करती है तो वो आपके पास फंक्शन होगा. सेम इज द केस हियर, है ना. सो इट मीन्स इसको मैं लिख सकता हूँ f of x is equal to x square because y is equal to what? F of x. And same is the case here if I draw lines parallel to what? Y axis. So again I can write f of x equals to x cube. This is also a function. Now if I draw lines here, what does it mean? That this is not a function. ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ, जैसे मैं अगर सपोज करो पहले आइडेंटिटी फंक्शन को वापस एक्सप्लेन करता हूँ अगर, राइट बॉस. तो इसमें हमारे पास क्या था कि जब भी मैं एक लाइन पैरेलल टू y एक्सिस ड्रॉ कर रहा था, व्हाट इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस? x इज इक्वल टू कांस्टेंट इज ऑलवेज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने x की वैल्यू ले ली a, तो इसने इसको इस जगह पे इंटरसेक्ट किया, तो कॉरस्पॉन्डिंग टू a आई गेट सम वैल्यू ऑफ y, लेट मी से a डैश. जब मैंने x की वैल्यू चेंज कर दी, b कर दी, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली बाय में भी क्या वैल्यू आ गई? इसकी b डैश. अगर मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पे सपोज करो c ले ली, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू y की भी क्या हो गई? c डैश. मतलब हर एक x के लिए एक डिफरेंट y आ रहा है हमारे पास. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन. सेम इज द केस हियर. अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो गई? यहाँ पे क्या हुआ कि जब मैंने इस ग्राफ में सपोज करो ये x की एक वैल्यू ले ली, ये वाला हमारे पास था, आई टुक x इक्वल टू लेट बी से a, मैंने यहाँ पे x को a लिया, तो एक यहाँ पे इंटरसेक्ट किया इसने, तो y का वैल्यू आ गया a डैश, और इसने यहाँ पे इंटरसेक्ट किया तो y का वैल्यू आपको लेट बी से a डबल डैश समथिंग व्हाटएवर इट इज,
So corresponding to one value of a, I got two associations of this with this function. तो हमारे पास पहली एसोसिएशन बनी a कॉमा a डैश, राइट, और दूसरी वाली एसोसिएशन क्या बन गई, a कॉमा a डबल डैश. तो एक पॉइंट कितनी जगह पे चला गया, दो जगह पे चला गया. सो ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ फंक्शन. एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे और शेयर करना चाहूँगा